السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جانور قسط نمبر 2۔ میں اگلے دن گیسٹ ہاؤس میں مصروف رہا، نکلا نہیں۔ میر باز نے بتایا کہ نئے لوگ پیدل بھی، اسکوٹروں پر، سائیکلوں پر بھی گیسٹ ہاؤس کے آس پاس چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ میں نے میر باز سے کہہ دیا کہ خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر وہ لوگ جھگڑا توڑ پھوڑ کچھ شروع کریں تو پھر دیکھ لیں گے۔ ہمت اور جرت اپنی جگہ، مگر ہمارے پاس معمولی لاٹھی خنجر کے سوا باقاعدہ کوئی ہتھیار، پستول، بندوق کچھ نہیں تھا۔ اور سمجھو ہم 3 ہی لڑنے والے تھے، خدا بخش کو ملا کے۔ گیسٹ ہاؤس کے بہرے، بٹلر، کوک لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں تھے۔ انہیں زیادہ کچھ بتانا بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ پریشان ہو جاتے۔ آدھی رات کے بعد جنگل کی طرف سے چھپتا چھپاتا خدا بخش شرائیں آیا۔ وہ شہر کے موالیوں وارداتیوں سے بازلر کے چھینے ہوئے پستولوں کے لیے کارتوس میگزین خرید لایا تھا۔ اس نے بہت قیمتی معلومات بھی حاصل کی تھی۔ سب سے اہم خبر یہ تھی کہ بازلر غائب ہے، اور یہاں کی سب کاروائی اس نے سلٹ کے غنبے جو بورو دادا کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اس نے ہمارے محاصرے پر 6 آدمی لگائے ہیں۔ آدمی کو کسی طرح کے جھگڑے بلوے کا آرڈر نہیں ہے، وہ صرف جو بورو دادا کو خبریں پہنچائیں گے اور ہمیں دہشت زدہ رکھیں گے۔ اسی لیے وہ چھپتے نہیں، چکر لگاتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ میں نے فکر مند ہو کر پوچھا، بزل الرحمان کہاں ہے؟ خدا بخش کہنے لگا، بازلر کو تو باؤ کاکسس بازار میں ہر طرف پوچھ لیا، وہ نہیں ہے، شہر سے نکلا ہوا ہے۔ مداری اور اس کا پوتا پوتی کی کوئی خبر؟ ہاں وہ بولا، خبر یہ ہے کہ اور بری خبر ہے کہ وہ لوگ بازلر کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس نے مداری کو بچوں سے الگ کر دیا ہے، بلکہ شاید تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ لڑکی اور مداری کا تو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے لوگوں کو لگا دیا ہے۔ ہاں لڑکی کا معلوم ہو گیا ہے، وہ یہیں شہر میں ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ نیو ساناگاچی میں۔ میں نے نام پہلے نہیں سنا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ خدا بخش ذرا مسکرایا، اس نے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا، پھر بولا، وہ نا جدھر وہ گانے بجانے والے اور کنجریاں شنجریاں رہتی ہیں، کاکسس بازار میں بھی اس کو سوناگاچی کہتے ہیں، نیو سوناگاچی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، سچ بات یہ ہے مجھے مداریوں کے اس کھانے سے اب کیا تعلق؟ جب تک وہ یہاں پڑوس میں تھے ہم ان کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، خدائی فوجدار تو نہیں ہیں ہم، وہ کہیں بھی رہیں کچھ بھی کریں۔ اب جو بھی اس بیچارے لڑکے میں نصیب میں ہوگا، جو بھی لڑکی کی تقدیر میں ہوگا، غریب بھگت لیں گے۔ خدا بخش نے پوچھا، کیا سوچنے لگے باؤ؟ میں سوچ رہا ہوں اگر لڑکا ادھر، کیا نام بتایا، گانے بجانے والوں کے محلے میں ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وکیل صاحب کے ذریعے پولیس کو خبر کرا دیں، وہ آپ ہی چھڑا لائیں گے۔ خدا بخش نے کھنگار کر گلا صاف کیا، کہنے لگا، باؤ ہم پر حملہ ضرور کرے گا بازلر، آج نہیں تو کل ضرور کرے گا، ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ سب سے اچھا بچاؤ باؤ شیر علی یہ ہے کہ ہم اٹیک کر دیں، اس لڑکے کو حاصل کر کے ہم اپنے پاس رکھیں، کیوں بھلا؟ اور جناب تاکہ آگے دباؤ ڈالنا ہوئے، سودے بازی کرنی پڑی تو ہماری پوزیشن مضبوط ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی، مگر کود پڑنے سے پہلے احتیاط ضروری تھی۔ میں نے کہا، ہاں اگر آسانی سے لڑکی کو لا سکے تو اسے یہاں گیسٹ ہاؤس میں رکھ لیں گے جب تک اس کے لوگ نہیں ملتے، کیوں نہ؟ خدا بخش بولا، یہی سوچ رہا ہوں، پر اسے ادھر سے نکالنا اوکھا کام ہے۔ اللہ مالک من ہمت پڑے، چلو کب چلنا ہے؟ باؤ صاحب جناب جانا تو صرف میں نے اور میر باز نے ہے۔ میں بھی نہ اٹھا، تمہارا مطلب ہے میں یہاں عورت کی طرح چھپا بیٹھا رہوں؟ خدا بخش شرائیں سنو، یہ میر باز کا یہ تمہارا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے یہ میرا۔ اگر میں نہیں جا رہا تو کوئی نہیں جا رہا، ہم سب اس تمام قصے سے دور رہیں گے۔ خدا بخش سوچ میں پڑ گیا، پر باؤ اپنے بنگس صاحب کو خبر لگ گئی تو؟ کیسے خبر لگے گی؟ بنگس صاحب ہزاروں میل دور ہیں، ہم 2-3 گھنٹے میں سب کچھ کر کے ادھر آ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ خدا بخش میرے والد کے پرانے سٹاف میں تھا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کے اصل باس کو کوئی نقصان ہو یا وہ خفا ہو، مگر خدا بخش سمجھ گیا تھا کہ اگر اسے نوکری کرنی ہے تو فی الحال بھی اور آگے بھی اس کا باس رہوں گا۔ وہ مجھے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے مشورے سے ہم نے چلنے سے پہلے کوک کے پاس ایک پرچہ رکھوا دیا، جس میں بعد سلام وکیل کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ میں یعنی شیر علی بنگش، خدا بخش شرائیں اور میر باز کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ کوک کو ہم نے ہدایت دی تھی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ہم گیسٹ ہاؤس نہ پہنچے تو وہ یہ پرچہ وکیل صاحب کو پہنچا دیں۔ بازلر اور اس کے گرگے سے چھینے ہوئے 2 پستولوں کی وجہ سے ہمارا آپس میں جھگڑا سا شروع ہو گیا۔ خدا بخش کہنے لگا، ایک پستول تو جناب میں رکھوں گا اور دوسرا میرا خیال ہے میر باز عمر میں بڑا ہے، وہ لکھڑے ہوئے تو اچھا ہے، اور میں ایسے ہی نہاتا چلوں گا؟ میں نے چڑ کر سوال کیا، دیکھیں نا جی، اصل میں تو مجھے اور میر باز کو جانا تھا، وہ جگہ اس لائق نہیں کہ آپ جیسے شریف نوجوان ادھر جائیں۔ میں نے کہا، خدا بخش یہ شریف نوجوان لائن مجھے مت دو، میر باز بھی شریف نوجوان ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے اسی جگہ؟ خیر کچھ دیر جھک کے بعد پستول مجھے مل گیا، مگر خدا بخش نے اللہ رسول کے واسطے دیکھ کر مجھے پابند کیا کہ میں کسی بندے پر گولی نہیں چلاؤں گا، ڈرانے یا زیادہ سے زیادہ ہوائی فائر کرنے میں کام آئے گا یہ پستول۔ گھنٹے 2 گھنٹے سو لینے کے بعد جس حد تک ممکن احتیاط سے یعنی لائٹ جلائے بغیر اور خاموشی سے تیاریاں کر کے ہم گیسٹ ہاؤس سے رخصت ہو گئے۔ پچھواڑے کے جنگل میں غائب ہو سکتے تھے، ہم غائب ہو گئے۔
अभी अंधेरा ही था जो रेस्ट हाउसों, डाक बंगलों के इलाकों से निकलकर हम शहर जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गए। इतनी दूध सब्जियां ले जाने वाले और शहर में अपनी नौकरियों पर पहुंचने वालों से बसें भरती जा रही थी। हम तीनों मौसम के हिसाब से चादर और कंबल लपेटे मुजाफात के लोगों का स्वांग भरे एक दूसरे से बेतल्लुक बस में बैठ गए। दिन निकल रहा था जब काकसिस बाजार के मरकजी इलाके में, जहाँ सब्जी, गोश्त, मछली, दूध की मार्केटें खुलती जा रही थी, हम पहुंच गए। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बस से उतरकर अलग अलग समतों में चल पड़े थे। छोटी बड़ी सड़कों और गलियों से होकर हम मौजमदार होटल पहुंच गए जो कम खर्च में साफ सुथरा नाश्ता करा देता था। अलग अलग मेज़ों पर बैठकर हम तीनों ने नाश्ता किया, पैसे दिए और एक ही वक्त में होटल से निकलकर टहलते हुए बगली गली में एक दूसरे से आन मिले। अब हम एक टीम थे और हमारी मंजिल शहर का वो बदनाम इलाका था जहाँ गाने बजाने वाले और खुदाबख्श के कहने के मुताबिक कंजरियाँ शंजरियाँ रहती थी। न्यू सोनागाछी जैसे इलाके में किसी छापामार कार्रवाई के लिए दाखिल होने का ये बेहतरीन वक्त था। शाम से रात गए तक इस मोहल्ले में गाना बजाना और तमाशबीनी होती थी। 2-3 बजे रात को ये बाजार ठंडा होता था। इस वक्त दिन चढ़े भी समझो इस मोहल्ले के लिए आधी रात थी। चाय खाने और होटल जो सारे शहर में मुंह अंधेरे ही खुल जाते थे, यहाँ बंद पड़े थे। राहगीर भी कम ही थे। इंतहाई जरूरी चीज़ों के स्टॉल या अंडे डबल रोटी की कोई दुकान खुली हुई थी या फिर सरकारी कारखाने यानी पुलिस चौकी वगैरह खुले हुए थे। इनके अलावा गलियों में सन्नाटा था। खुदाबख्श ने हमें एक बेकरी के पिछले दरवाजे पर जा खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। बेकरी के पिछले दरवाजे पर भी कुछ लोग खड़े थे, काम वाले भी आ जा रहे थे। खुदाबख्श पहले ही बता चुका था कि ये बेकरी साइड में अफीम, चर्स वगैरह फरोख्त करती है। पिछले दरवाजे पर खड़े हुए लोगों में वो नशेबाज शामिल थे जो सवेरे ही सवेरे नशा टूटने पर नई डोज के लिए बेताब होकर निकल पड़े थे। बेकरी के नौकरों और नशेबाजों ने जो अपने अपने चक्करों में पड़े थे, मुझे और मीरबाज को मंडलाते भी देखा भी होगा तो गौर नहीं किया। हम जैसे चादरों में लिपटे और भी मशगूल से लोग गली में और सड़क पर अपने सुबह के डोज का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में खुदाबख्श एक उजड़ उम्र के बर्मी नौकर के साथ बाहर आया। बर्मी बेकरी के नौकरों की तरह तहमद पर आस्तीनों वाली बनियान पहने था, ऊपर से पुराना डबल ब्रेसलेट कोट चढ़ाए था। मुझे पहली नजर में बर्मी कुछ चक्का सा लगा। मीर खुदाबख्श इससे घुट घुट कर बातें कर रहा था तो मैंने इसकी शक्ल नापसंद होने के बावजूद इसे गवारा कर लिया। हम तीनों बर्मी के पीछे पीछे चल पड़े। ये हमें सोनागाछी के सस्ते होटलों, चाय खानों की लाइन में ले गया। एक होटल के पिछले दरवाजे पर रुककर इसने जेब से चाबी निकाली और खुदाबख्श हंसते हुए बताने लगा कि जब होटल के किसी पैसेंजर के लिए चोरी छुपे सप्लाई लाता है तो यही कुफल खोलकर होटल में दाखिल होता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि कौन आया और क्या लाया। खुदाबख्श जाहिर ये कर रहा था कि सिर्फ वही बर्मी जुबान जानता है। इसने बेकरी के नौकर से पूछा, कैसी सप्लाई? नौकर हंसकर बोला, सब तरह की, बाटली में और पुड़िया में लिपटी भी और चादर में लिपटी भी। वो दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंस पड़े। मुझे ये चक्का बर्मी और भी गंदा लगा, मगर मैंने ये जाहिर किया कि जैसे इनकी बात समझ में नहीं सकता। पिछले दरवाजे से हम इस होटल में दाखिल हो गए। इन तंगो तारीख गंदी सीढ़ियों से चढ़कर हम तीसरी मंजिल पर होटल के एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहाँ अंधेरा तो था ही, गुसल खानों, पेशाब खानों की सख्त नागवार बू भी उठ रही थी। कुछ देर बाद वजह समझ में आ गई। ये कमरा एक कोठरी होटल के मुश्तरका बाथरूम्स के निगरान जमादार की कोठरी थी। जमादार या शायद वो जमादारनी थी जो टूटे स्प्रिंगों वाली चारपाई पर दराज थी। बर्मी ने बहुत मुश्किल से इसे बेदार किया। इसने चारपाई से उठकर कोठी की लाइट जलाई। पीला सा बल्ब रोशन हो गया। रोशनी में पता चला कि बाथरूम्स निगरान न जमादार है न जमादारनी, खुसरा यानी कि जनखा है और देहाती औरतों के कपड़े पहने हुए है। जनखे ने हाथ चलाते हैं ताली फिटकारते हुए पहले तो बर्मी, फिर इसकी जुबान में गुस्सा किया कि इसने सोते से उठा दिया। कहने लगा, भला कोई वक्त है किसी को उठाने का? फिर जब बर्मी ने धीरे से कुछ कहा, कोई नाम ले, तो जनखे ने गुस्सा खत्म करके खुशामद में ताली फिटकार शुरू कर दी। बंगला में बोला, ऐसे भद्दर बड़े लोगों को कोठरिया में क्यों ले आया? चल बालकोनी में ले जाकर बैठा, मैं आती हूँ। खुदाबख्श ने कहा, हम बैठने नहीं आए, जहाँ से ले जाना है ले चल। बेकरी का नौकर हमें गुसल खानों के पास खड़ा छोड़कर वापस चला गया। यहाँ के बाद जनखे को हमारी रहबरी करना थी। होटल से मैं लेकर निकला तो सड़क पर बिल्कुल खामोश और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। अचानक वो मुड़ा और पेचीदा गलियों के इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ इसने अपनी रफ्तार कम कर ली थी। हम चारों एक छोटे से गिरोह की सूरत में तंग गलियों से गुजरे तो इक्का दुक्का राहगीर हमें दिलचस्पी से देखा था। ये जनखी की वजह से था। मुझे उलझन होने लगी। अचानक वो एक जगह रुक गया। सरगोशी में कहने लगा, मैं दूर से वो गोदाम बता देती हूँ जिसमें उन्होंने लड़के को बंद कर रखा है। गोदाम में घुसना आसान नहीं है। फिर कह देती हूँ होशियारी से जाना, मगर पहले मुझे निकल जाने दो। किसने तुम लोगों के साथ मुझे देख लिया तो बाद में मेरा। इसने अपने हलक पर 2 उंगलियां चलाकर कत्ल का इशारा किया। खुदाबख्श ने जेब से 50 रुपये निकालकर जंखे को दिए। वो खुश होकर दुआएं देता हुआ जाने लगा। फिर रुककर बोला, 5 मिनट रुको, मुझे जाने दो, अभी एकदम मत घुस पड़ना। खुदाबख्श ने कहा, ठीक है तुम जाओ, वैसे भी देर लगेगी हमें। और हम लोग सुनसान गलियों में एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे। जनखा मुड़कर पलक झपकते में गलियों की भूल भुलैयों में गुम हो गया। खुदाबख्श ने इधर देखकर मुझे इशारा किया और खुद भी अपना पिस्तौल फायर के लिए तैयार कर लिया। हिजड़े ने जो गोदाम बताया था, इसके 2 रुख 2 गलियों में खुलते थे। यकीनन दोनों तरफ दरवाजे होंगे। जिस रुख पर हम खड़े थे इस तरह बड़े फाटक में ताला पड़ा था। कुछ भी करने से पहले दूसरा रुख देख लेना जरूरी था। तीनों खामोशी और एहतियात से तेज से चलते हुए गली में घूमे ताकि गोदाम का दूसरा रुख भी देख लें, मगर हम एक ट्रक से टकराते टकराते बचे। ये ट्रक एकदम कोने पर बहुत गलत तरीके से पार्क किया गया था।
हम तीनों ने जरा घूमकर ट्रक से आगे गली में निकल जाना चाहा, फिर हम हैरत में रुके और जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। 6 आदमी अपने राइफलें छितराए हम तीनों को निशानों पर लिए सुकून से ट्रक की ओट में खड़े थे। 7वें आदमी के हाथ में कोई हथियार नहीं था और ये आदमी बजलुर रहमान बाजलर खुद था। बाजलर ने अपनी बंगाली उर्दू में कहा, आ जाओ पठान भाई, इस दफे कोई गोड़बोड़ नहीं करना, ये गेस्ट हाउस का एरिया नहीं, रोंडी बाजार है, इधर हमको मार के फेंक देगा, कोई नहीं पूछेगा, गोली मोली बराबर चलती है इधर, कोई नहीं पूछता। हाँ, खुदा बख्श के और मेरे हाथ में बेशक भरे हुए पिस्तौल थे, लेकिन हमारी नाकों से 2-2-2.5 फीट दूर 2 तैयार राइफलों की नालें थीं। बाजलर के आदमी ने खामोशी से अपने मालिक के पिस्तौल हमारे हाथों से ले लिए। हम तीनों की तलाशी ली, सब पैसे हथिया लिए, मीरबाज के नेफे में उड़ता हुआ खंजर निकाल लिए और खामोशी से हम तीनों को ट्रक में बिठा दिया। वो लोग मुनज़्ज़म अंदाज में एक एक करके ट्रक में आ बैठे। एक ही सिवा सबने अपने राइफलें टाट के टुकड़ों में लपेटकर सीटों के नीचे रख दी। फिर अचानक हम पर टूट पड़े। हाथ भर के भारी पापे से उन्होंने हमें मारना बल्कि कूटना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्यादा हमले सरों पर किए। 6-8 मिनट भी न लगे होंगे जब मैं बेहोश हो गया। किसी किस्म की तकलीफ या चोट का एहसास न रहा। आखिरी आवाज़ जो मैंने सुनी मीरबाज खुदाबख्श राय की कराहें थी। किसी ने बंगला में कोई हुक्म दिया और ट्रक थर थराकर स्टार्ट हो गया था। मैं कितनी देर बेहोश रहा इसका तो अंदाज़ा नहीं। जब होश आया तो यकसा रफ्तार से गाड़ी का इंजन चलने और मर्दों के सुर मिलाकर गाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं सर और गर्दन की तकलीफ की वजह से घूम नहीं सकता था। एक ही रुख से पड़ा रहा और मुझे अगवा करने वालों से बंगला जुबान के गीत सुनता रहा। ज़्यादातर खलियानों और खेतों में गाए जाने वाले गीत थे। खुदा मालूम 2.5-3 घंटे या 4 घंटे ये गाड़ी चलती रही। बदन की तकलीफ, भूख और प्यास में बेहाल हो रहा था। फितरी ज़रूरत भी सता रही थी, मगर उन्होंने मुंह पर किसी किस्म का टेप छिपा दिया था। बस ऊँ गूँ की आवाज़ें निकाल सकता था जिस पर वो तवज्जो नहीं कर रहे थे। आखिर को ट्रक रोक दिया गया। 2-3 आदमियों के खींचते हुए और लाते घोंसे मारते गालें देते हुए ट्रक से उतारकर खेतों झाड़ियों में रोके रखा। मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने को दिया और उबली हुई शकरकंदी और कच्चे सिंघाड़े खाने को दिए। इस तमाम अरसे में के हम खेतों में खला भरे। ना तो उन्होंने हमारी आंखों से पट्टी खोली और ना ही एक दूसरे से बात करने की इजाज़त दी। आधे पौन घंटे बाद उन्होंने हमें फिर खींचते और गाली गलोच करते हुए ट्रक पर चढ़ा दिया। ट्रक चल पड़ा तो उन्होंने हमारे बारे में आपस में बातें और मजाक करना शुरू कर दिया। बातों में ज़्यादातर धमकियाँ दी जा रही थी कि हम बाजलर साहब को बहुत खफा कर दिया है, अब वो शायद ही हमें माफ़ करेगा, तीनों को शूट करा देगा। सबसे ज़्यादा बकवास वो मेरे बारे में कर रहे थे कि इसे देख पठान भाई की उम्र ही क्या है, ज़मीन से उगा है और अभी बदमाशी करने रूली पाड़े में आ गया है। और 2 घंटे ये हमारा कैदी वाला ट्रक चलता रहा। फिर शायद हमारी मंजिल आ गई। हम किसी कंपाउंड में दाखिल हुए थे। ट्रक रोक दिया गया था, हमें उतारा गया, बंदिशें पट्टियाँ खोल दी गई। खुदा बख्श की हालत सबसे अबतर थी। इसे उन्होंने बहुत मारा पीटा था, सर फाड़ दिया था। मीरबाज भी जख्मी हुआ था। जहाँ हम उतरे थे ऊंची दीवारों वाले इस अहाते में एक तरफ किसी किस्म का कारखाना कायम था। कई छोटे बड़े स्टोर हाउस और एक इंतजामी बिल्डिंग नजर आ रही थी। हमें इंतजामी बिल्डिंग के कमरों में अलग अलग बंद कर दिया गया। लगता था हमारे पहुंचने से पहले कमरों को हमारे लिए तैयार किया गया था। कुर्सियां, मेज, दीवारों पर लगे किसी किस्म के चार्ट या नक्शे, तस्वीरें वगैरह वो सब हटा दिया गया था। बस दीवारों और फर्श पर इनके निशान नजर आ रहे थे। बीचों बीच फर्श पर एक गद्दा पड़ा था। कोने में एक मटका और मिट्टी का प्याला रखा था। ये था मेरा कैद खाना। मैंने सोचा खुदा बख्श और मीरबाज को भी इसी तरह रखा गया होगा, या हो सकता है बेचारे मुलाजिम ने इन्हें और तकलीफ में रखा हो। बे आराम, लंबे सफ़र की थकान और चोटों से मैं बेहाल था। कुछ देर तकलीफ से करवटें बदलता रहा, फिर सो गया। खुदा मालूम 3-4 के 6 घंटे बाद आँख खुली। कमरे में अंधेरा था, मगर सलाखों लगी खिड़कियों की शीशों से अंदर कुछ उजाला सा आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया। पानी पीकर आया। भूख का एहसास बढ़ गया था। मैं फिर गद्दे पर आ लेटा। वालिद साहब ने हमें अपने बच्चों को आराम में रखा था, मगर आराम और आसाइश में हमें नरम नहीं बनने दिया था। सख्तियाँ झेलने की आदत भी डाली थी। मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। भूख से बदन की दुखन से जितनी देर बचत हो सके अच्छा है। नींद अच्छी पनाह होती है, मगर नींद न आई। इसी सियासी कारकुन बजलुर रहमान की मुजरिमाना हरकतें एक तरतीब से याद आने लगी। बुरा मदारी याद आया और वो रीछ जिसका आना और जाना मैं समझ नहीं पाया था और समझना चाहता था। हर कीमत पर समझना चाहता था। मुझे कामिल यकीन था कि मदारी और इसके पोता पोती से फिर मिलूंगा और ये मसला हल कर लूंगा। चंद घंटों की बात है। हम लोगों ने गैस हाउस से चलते वक्त कुकसपुर जो पर्चा किया था, 24 घंटे पूरे होने पर वो इसे वकील साहब के हवाले कर देगा। वकील न्यू सोनागाछी के इस पहले राब्ते यानी बेकरी के बरमी मुलाजिम से मालूम करेंगे, फिर इस गुस्से से जमादार को पकड़ेंगे। मुमकिन है कल दोपहर तक या ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक इस बदमाश बाजलर को धर लिया जाए। अगले 24 घंटों में तो मैं और मेरे दोनों वफादार साथी गेस्ट हाउस में होंगे। यही सब पुरुमीद बातें सोचता हुआ मैं फिर सो गया। अब जो आँख खुली तो दिन निकल आया था। बाहर किसी गाड़ी के बार बार सर उठाने की आवाज़ आ रही थी। इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता था, बैटरी कमज़ोर थी। मैं ये गैर मुतल्लिक बात सोच रहा था कि बड़ी आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और तेज़ी से बाजलर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कोई कागज़ था, दूसरे में अखबार। एक नौकर कुर्सी उठाए बाजलर के पीछे पीछे आया था। नौकर के शाने पर बेल्ट पड़ी थी जिसके होल्स्टर में पिस्तौल था।
इसने मेरे गद्दे के सामने कुर्सी बिछा दी। बाजलर बैठ गया। गार्ड कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हुआ। बाजलर ने बैठते ही पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ले, इसको पढ़ ले, वरना मालूम कि मुझसे अपनी फजूल उर्दू में बात कर रहा था, जबकि इसे मालूम था कि मैं बहुत अच्छी बंगला बोलता हूँ। मैंने पर्चा हाथ में थामा और सन्नाटे में बैठा रह गया। ये मेरा वो रुका था जो मैं वकील साहब के नाम कुक के पास इन हदायत के साथ छोड़ आया था कि 24 घंटे तक हम ना आए तो रुका वकील को पहुंचा देना। बाजलर बोला, ये समझता हूँ तुम्हें बांग्ला अच्छा पढ़ सकता है, अभी ये भी पढ़ो। और उसने दूसरे हाथ में थामा हुआ बंगला का अखबार मेरे सामने गद्दे पर डाल दिया। अखबार की एक छोटी सी खबर को बाजलर ने सुर्ख रोशनी का हाशिया लगाकर नुमाया किया था। मैंने पढ़ा। यह खबर थी कि मुकामी मुस्लिम लीग रहनुमा मुजम्मिल हुसैन एडवोकेट के ऑफिस पर हरीफ सियासी जमात के पुरजोश कारकुनों ने हरा बोल दिया और दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई। एडवोकेट मुजम्मिल को इस हंगामे में सर पर चोटें आई हैं। इन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत खतरे से बाहर है। खबर पढ़कर मैंने बाजलर की तरफ देखा। कहने को कुछ नहीं था। बाजलर मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कहने लगा, पेपर लिखता है इसका हालत खतरे से बाहर है। सही बात है, इसका जान को कोई खतरा नहीं। एडवोकेट मुजम्मिल हुसैन मरेगा नहीं, 10-12 साल ऐसे ही जिंदा रहेगा। ना कुछ बोल सकेगा, न लिख पढ़ सकेगा, बस खाना खाएगा, सोएगा, जागेगा, जिंदा रहेगा। इसके सर में जो चोट लगा है रबड़ के डोंडे से, बहुत चोट है। सियासी हरीफ लोग ने चच अभी तुम्हारा मामला भी फिश है, एकदम खत्म। इधर सो, आराम से नाश्ता खाओ, खाना खाओ और बरखलास, एकदम खत्म। ये कहकर बाजलर उठ खड़ा हुआ। इसके बॉडीगार्ड ने अखबार रुका और कुर्सी और इसके पीछे पीछे कमरे से निकल गया। बाहर से कुंडा चढ़ाने और ताला डालने की आवाज आई। इन दोनों के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर गाड़ी ने सल्फ उठाया। एक बार इंजन स्टार्ट करने की आवाज आई और फिर गाड़ी चली गई। फिश खत्म, एकदम खत्म। मैं जिसे मामूली झगड़ा समझ रहा था वो कोई बड़ी बात बन चुका है। मैं बेआसरा बूढ़ी मदारी की मदद की और ऐसे खतरनाक आदमी की दुश्मनी मोल ले ली। वकील मुजम्मिल ने मुझे बचाने के लिए पुलिस को और इस सियासी कारकुन को नहीं, बदमाश बजलुर रहमान को कानूनी गिरफ्त से बेअसर कर दिया और दोनों को एक दूसरे के सामने जलील किया। ये बात बाजलर को खा गई। वो खुद को बड़ा लीडर समझता है। एक खास अंदाज से ताकतवर तो वो है क्योंकि इसने कामयाबी से मुझे और मेरे साथी को अगवा किया है और मुजम्मिल एडवोकेट को बेकार कर दिया है, शायद हमेशा के लिए। मगर क्या इतनी छोटी सी बात के लिए बाजलर ने पूरी ताकत इस्तेमाल की होगी? सिर्फ तौहीन का बदला लेने को ये सब किया होगा। और यह मैंने सोचते सोचते इनकार में था झटका। बात कोई बहुत बड़ी है। मुझे सुकून से कैद खाने में बैठकर इंकिशाफ की अगली हैरतनाक किस्त का इंतजार करना चाहिए और ये अगली किस्त भी खुद बजलुर रहमान लेकर आएगा। इसे हर चीज को ड्रामे के साथ पेश करना आता है। मेरे करने को फिलहाल कुछ नहीं था। मैं फिर हाथ पैर फैलाकर लेट गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, कोई नहीं आया। बहुत भूख सताती तो उठकर पानी पी लेता, मगर खाली पेट पानी भी अब मैदे को तकलीफ पहुंचाने लगा था। मुझे भूख प्यास पर काबू पाना सिखाया था वालिद साहब ने। कहते थे जंगल हमारी जिंदगी है, मगर हम भूल जाएं, जख्मी या बेकार हो जाए तो ये जंगल हमारी मौत भी बन सकता है। उन्होंने कम अज कम खुराक पर ज्यादा देर जिंदा रहने के कुछ गुर बताए थे, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था जिसको बुनियाद बनाकर जिंदगी को तूल देने का कोई गुर इस्तेमाल किया जाता। मुझे तो कुछ खाए हुए भी 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे। क्या बाजलर कमजोर करना चाहता है मुझे? जब भूख और तन्हाई से मैं नरम पड़ जाऊंगा तो वो चोट लगाएगा और अपना मकसद हासिल कर लेगा। क्या चाहता है ये बजलुर रहमान? मगर मकसद क्या है इसका? इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं मिलेगा, अभी इंतजार करना होगा। मेरे सिरहाने कोई चीज आकर गिरी। मैंने पहले तवज्जो न दी, पड़ा रहा। फिर कुछ और शीशे की सी आवाज आई, बहुत हल्की। मैंने सर घुमाकर देखा, सुर्ख शीशे के 2 टुकड़े पड़े थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उठा लिए। देहाती चूड़ी के टुकड़े थे। ये कहाँ से गिरे हैं? मैंने सर उठाकर देखा। सिरहाने एक रोशनदान था। रोशनदान से मेरे देखते ही देखते चूड़ी का एक टुकड़ा आकर गिरा। उधर कोई है, शायद मेरे साथी में से कोई, जो इशारे दे रहा है। मैंने आस्ते से उठकर दीवार से कान लगा दिया। मेरे कमरे में शीशे का एक और टुकड़ा आ गिरा। मैंने दीवार पर थपकी दी। जवाब में उधर से किसने दीवार पर हाथ मारा। मैंने खड़े होकर रोशनदान की तरफ मुंह करके पूछा, कौन है? उधर से कोई जवाब न आया, कोई आहट सुनाई न दी। मैंने फिर दीवार पर हाथ मारा। जवाब में उधर से दीवार थपकी गई। मैंने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? शोर नहीं करो, आहिस्ते बात करो। किसी लड़की की आवाज थी। रोशनदान की दूसरी तरफ लड़की थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। इसने कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। मैंने कहा, फिर कहो, क्या कह रही हो? मैं हूँ, इनका खाना पकाती हूँ। खाने का नाम सुनकर जैसे मैं निहाल हो गया। मैं भूखा हूँ, मुझे खबर है कुछ खाने को मिल सकता है। मैंने जैसे इल्तिजा की। बहुत मुश्किल है, वो बोली। मुझे भी ताले में रखते हैं वो। जब खाना पकाना होता है या मेरी जरूरत होती है तो ले जाते हैं। ओह, मैं और क्या कहता। वो बोली, कुछ खाए तुम्हें, एक दिन एक रात गुजर गई होगी। हाँ देखो, वादा तो नहीं करती। सुबह तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी, कोशिश करूंगी। सुबह यानी कल? हाँ। ये क्या जगह है? कारखाना है कोई? नहीं। शहर कौन सा? गांव बताओ कौन सा है? बागीर पोड़ी। कौन सा जिला लगता है? करीब का शहर कौन सा है? बोली, ये नहीं मालूम। मैंने पूछा, तुम्हें कहाँ से लाए हैं?
चट्टोग्राम से। खूब, तो वो चट्टोग्राम की रहने वाली थी। क्यों पकड़ा है तुम्हें? इसने कोई जवाब न दिया। अलग एक बात शुरू कर दी, बोली, तुम 3 को लाए थे। वो 3 में से तुम कौन हो? बड़ी उम्र के मर्द, अच्छे कपड़े वाले, या चौकीदार जैसे? इसने हमें ट्रक से उतरते देख लिया था। मैं हंस पड़ा। इसे बताया कि चौकीदार जैसा जो है वो चौकीदार ही है, और बड़ी उम्र वाला मर्द मेरे बाप का ड्राइवर है, अभी छुट्टी पर है। मैं 3 में से वो हूँ जिसे तुम अच्छे कपड़े वाला कह रही हो। वो भी हंसने लगी। तो तुम साहिब हो, बंद करने वालों को असल काम तुम्ही से है। मैं चुकन्ना हो गया। काम तुम्हें पता है मुझे क्यों लाए हैं? ना, ये तो नहीं मालूम, बस ये सुना था तुमसे कोई काम है इन लोगों को। वो लोग तुमसे बात करते हैं? हाँ, पर कम कम। इनसे पूछना मुझे क्यों लाए हैं। नहीं बताएंगे मुझे मारेंगे। तुम्हें मारते हैं? चुप, कोई आ रहा है। दूसरे कमरे का दरवाजा खुला होगा। आवाज इतनी हल्की थी कि वह मुश्किल सुनाई दी। किसी ने बहुत देर से कुछ कहा। कोई मर्द था। लड़की ने बुलंद आवाज में पूछा, क्यों? जिस पर आने वाले ने शश कहकर इसे चुप कराया। फिर ऐसी आवाजें जैसे हाथापाई हो रही हो। शायद इसे खींचकर कहीं ले जाया जा रहा था। फिर दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद सन्नाटा। इतनी देर तक रोशनदान की तरफ मुंह उठाए लड़की से बातें करते करते मैं थक गया था। भूख ने वाकई कमजोर कर दिया था। मैं आकर लेट गया। सोचने लगा, लड़की ने वादा किया है वो सुबह जरूर मेरे लिए खाने को कुछ लाएगी। हो सकता है कैद करने वाले रात होने से पहले मुझे खाने को कुछ दें। सुबह तो बहुत देर में होगी। अगला रोज बहुत दूर है। मैं लेटा रहा, सोता जागता और खानों के ख्वाब देखता रहा। कितनी बार सोया, जाग उठा, सुबह हो चुकी थी जब कोई चीज गर्म और नरम से मुझ पर आकर गिरी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। पहले समझा कि छोटा जानवर गिरा है। फिर दूसरी तरफ से कमरे की दीवार थपथपाई गई। लड़की की आवाज वो पूछ रही थी, मिल गया? ओ, मैंने हल्के उजाले में सामने पड़ी चीज की तरफ हाथ बढ़ाया। उबला हुआ आलू था, अभी तक गर्म था। मैंने आलू को छीलने का तकल्लुफ न किया। शुरू हो गया। मुंह चलाते हुए मैंने बेढंगेपन से जवाब दिया, हाँ मिल गया, मेहरबानी तुम्हारी। लड़की की आवाजें, अच्छा ये लो। और इसने खाने को फिर कुछ फेंका होगा जो वापस उधर ही जा गिरा। लड़की खुशदिली से हंसी। ठहर जाओ, फिर फेंकती हूँ। इसने फिर फेंका। ये फ्रूट बन था, बासी था, मगर गेहूं, दूध, चीनी, किशमिश इन सब नेमतों को मिलाकर बनाया गया था। लड़की ने एक और उबला हुआ आलू फेंका। मैंने इसे छीलकर खाया, पानी पिया। इसने अफसुर्दा आवाज में कहा, और कुछ नहीं है? पेट तो नहीं भरा होगा तुम्हारा? परवाह नहीं, मैंने पानी पी लिया था। पेट भरा भरा लग रहा था। मेहरबानी तुम्हारी। अरे हाँ, तुमने नाम तो नहीं बताया अपना? रूपाली। खूबसूरत नाम है, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। बस नाम ही सुंदर है, मैंने चहकती आवाज में कहा। ये तो तुम कह रही हो, मैं तुम्हें देखूंगा तो बताऊंगा। खूबसूरत तुम हो, मैंने देखा है तुमको। गोरे, सफेद, लंबे, ऊंचे। मैंने कहा, गोरा, पीला, नीला, लंबू, छोटू, ये सब कुछ नहीं होता। असल खूबसूरती कुछ और होती है। तुम बहुत अच्छी होगी, मुझे मालूम है। जो लड़की भूखे का पेट भरे बहुत हसीन होती है। वो हंसने लगी। ठहर ठहर कर हंसती रही। फिर आहिस्ता से कहा कि मैं वो मुश्किल सुन का कहने लगी, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, इस कमरे में आऊंगी। कैसे? मैंने पूछा। ये ख्याल कि जिस नामालूम लड़की की आवाज़ मैं सुनता हूँ, इस वक्त सुन रहा हूँ, वो किस तरह यहाँ मेरे पास आ सकती है, आएगी। ये ख्याल मुझे मस्त वो सरशार कर गया। वो आहिस्ता से बोली, अब जा रही हूँ, बहुत काम पड़ा है। अच्छा जाओ, तुम बहुत अच्छी हो। वो जवाब में हंसती और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। पेट भर गया तो मुझे अपनी फिक्र न रही। मैं खुदा बख्श और मीरबाज के बारे में सोचता रहा। खुदा मालूम किस हाल में रखा होगा इन्हें। मीरबाज भूख का कच्चा है, वो तो बहुत परेशान होगा। मैं कमरे में टहलता रहा। मशरिकी पाकिस्तान में गुजरा हुआ अपना अच्छा वक्त याद आ रहा था। कुछ देर टहलकर गद्दे पर जा बैठा, फिर लेट गया और सो गया। मैं दरवाजा खुलने की आवाज़ से उठा था। 2 आदमी कमरे में आए थे। एक तो वही हथियारबंद बदमाश था जो बाजलर के साथ इसकी कुर्सी उठाए पहले आ चुका था। दूसरा भी मुसल्ला था, नाश्तादान लेकर आ रहा था। बगैर कुछ कहे उन्होंने नाश्तेदान मेरे सामने रख दिया। मैं अपनी जगह बैठा रहा, बारी बारी दोनों की सूरतें देखता गया। नए आदमी ने कच्ची उर्दू में कहा, तुम ही खाओ इसे। मैंने मुस्कुराकर देखा, बंगला में इसका शुक्र अदा किया और नाश्तेदान खींच लिया। मुझे बंगाली बोलते सुनकर नए आदमी मुस्कुराया, बोला, तुम तो बहुत अच्छी बंगला बोलते हो। पुराने आदमी ने मुंह बनाए से डांट दिया, कहा, चुप करो, कैदी से बात करने का ऑर्डर नहीं है। मैं हंस पड़ा। नए आदमी अपने साथी के धौंस मारने पर इसे घूर कर देखने लगा। मुझे मजा आ रहा था। मैंने पुराने आदमी का लफ्ज दोहराया, ऑर्डर। वाह बेटा। पुराने ने हथियार मेरी तरफ सीधा कर लिया। चुप बैठकर खाए, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और नाश्तेदान खोलने लगा। नाश्तेदान में चावल, दाल और सब्जी थी। मैंने थोड़ा खाना बचा दिया। पुराने वाले गुर्गे ने हैरत से देखा। इसे तो को होगी कि मैं और खाना मांगूंगा। नाश्तेदान इससे बढ़ाते हुए मैंने इसकी आंखों में मुस्कुराकर देखा और कहा, ले, बाकी तू खा ले। पुराने ने गाली बकी और अपने साथी को इशारा किया। इसने नाश्तेदान उठा लिया। दोनों चले गए। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। पता नहीं दाल या सब्जी बासी थी जो थोड़ी देर में मुझे चक्कर आने लगे। मैंने सोचा लड़की के आलू और बन खा लिया था, वही ठीक था। मुझे इन बदमाशों का लाया हुआ कचरा नहीं खाना चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने पानी पिया, लड़खड़ाता बिस्तर तक पहुंचा और बेसुध होकर गिर गया। सर घूमे जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे गद्दा फर्श पर डूबता जा रहा है। मैंने गिरकर उठना चाहा, उठ न सका, लेट गया। कब आंख खुली नहीं मालूम।
आंख पूरी तरह खुली भी नहीं थी, फिर भी छत नजर आई, कपड़े की छत, इस पर शोक रंगों के फूल छपे थे, चिड़ियां थी। छत मुझे अच्छी लगी, चिचाह के हंसता रहूं। फिर दीवारों पर नजर पड़ी, तरह तरह के कैलेंडर तस्वीरें, जापानी औरतों की तस्वीरें, दुबले पहने हुए, छतरी लिए हुए औरतें, शीशे जड़े फ्रेम में हैट लगाए हुए अंग्रेज, जिनकी में पर वाली टोपियां पहने शिकार करते हुए गोरे चीखते चिल्लाते हबशी, एक हबशी पर हमला करता हुआ बब्बर शेर, काले हबशी का बहता हुआ सुरखून। मैं परेशान होकर तस्वीरों से नजर हटा ली, फिर देखता हूँ बड़ी बेशर्मी की एक तस्वीर नजर आ रही है। औरत कुछ नहीं पहने हुए, काली सैंडले और गले में मोतियों की माला, बस। इस औरत की तस्वीर दांतों से फूल पकड़े हुए, और बस सैंडले भी नहीं। ये क्या है? रेडियो सेट पर, दीवारों पर यही तस्वीरें, कोने में ग्रामोफोन बाजा, इस फूल की शक्ल का बड़ा सा भोंपू, सामने कुत्ता बैठा हुआ। मैंने करवट बदल ली, बिस्तर पर फूलों की तेज खुशबू से छींक आ गई। कोई पास बैठा था जिसने मेरे हाथ में एक फूल पकड़ा दिया, शीशे का लंबा फूल। छत के कपड़े की चिड़ियों पर मेरी नजर पड़ी, बहुत हंसी आई। मैंने फूल चिड़ियों की तरफ बढ़ा दिया, तेज रोशनी हुई, फूल पे शबनम हो गई जो मुझ पर और बराबर में बैठी इस लड़की पर गिरी, मगर शबनम में बहुत तेज बू थी। फिर जबरदस्त रोशनी का एक और झमाका हुआ, इससे भी शबनम की बू दूर न हुई। कोई हंस रहा था, शायद वही लड़की होगी। इसके बाद और कितनी देर सोता रहा नहीं मालूम, करवट बदली लगा जैसे कहीं सर पर दिमाग में थोड़े बरस रहे हैं। एक लंबी सफेद कोट वाला आके आया, इसने आला लगा के देखा, आंखें चीर के देखी, कहने लगा ऑपरेशन होगा। किस बात का? मैंने पूछा, मगर मेरी जुबान मोटी होती जा रही थी। खुद अपनी आवाज अजीब सी लगी। जहर फैल गया है। और किस बात का? बासी सालन खा ली है तुमने, ऑपरेशन होगा। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। ठीक है, कर लो ऑपरेशन, इस कागज पर दस्तखत करो, कोट वाला बोला। मैंने मोटी जुबान में पूछा, कागज? कस कागज की बात? तुम्हारी इजाजत से ऑपरेशन करेंगे, अस्पताल जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर कुछ हो गया तो। मेरी समझ में ये बात आ गई, अस्पताल कहाँ है? सफेद कोट वाले ने दीवारों की तरफ, छत और फर्श की तरफ हाथ फैलाया। ये है ना? ये बात मेरी समझ में ना आई, मगर सर बहुत दर्द करता था। कर लो ऑपरेशन, मगर मेरे वालिद साहब कहाँ हैं? बाहर बरामदे में, इन्हें बुलाओ, फिर करना ऑपरेशन। हाँ, ये बात मैंने ठीक कही। सफेद कोट वाला खफा हो गया। दस्तखत नहीं करोगे तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, मर जाओगे। अच्छा उठो। कोट वाले ने मुझे सहारा देकर उठाया। उठो, यहाँ दस्तखत करो जल्दी, नहीं तो वो लोग बरामदे से चले जाएंगे। कौन? मेरे वालिद साहब। हाँ। कोट वाले ने मेरे हाथ में कलम दे दिया और सामने बहुत से कागज रख दिए। वो कहता, यहाँ, और मैं दस्तखत कर देता। एक बार कहने लगा, हाथ संभाल के। क्या करते हो? हाँ, खूब संभाल के। और कितने कागज हैं? मुझे फिक्र थी कि वालिद साहब बाहर से कहीं चले न जाए। तन्ने कागज? कितने कागज है? और ये तो बहुत हो गए। यहाँ, यहाँ और यहाँ। शाबाश, वो बोला। रिकॉर्ड के लिए भी पुलिस को कापी जाती है ना भाई। अच्छा, बस अब लेट जाओ। कोट वाले ने मेरा कंधा थपथपाया, सर में अंदर ऐसे लगा जैसे भेजा शीशे की तरफ टुकड़े टुकड़े हो गया हो, मगर मैं लेट गया। सफेद कोट वाले ने जाते जाते बाजू में सुई चुभो दी। मैं चीखा, क्या करते हो? कहने लगा, ऑपरेशन कर रहा हूँ, चुपचाप लेटे रहो। बिस्तर नीचे नीचे और नीचे फर्श में गिरता जा रहा था। पसीने में तर, कमजोरी में लरसता हुआ उठा तो अपने इसी खाली कमरे में आकर गद्दे पर पड़ा था। मुझे कैद करने वालों ने रहम खाकर कंबल उड़ा दिया था, जो मैंने लाते मार मार के गद्दे से नीचे नंगे फर्श पर सिरका दिया था। आधे घंटे से ज्यादा पड़ा रहा, उठने की हिम्मत करता रहा। आखिर कोशिश करके उठा, पानी तक पहुंचा। पहाड़ सर करने के बराबर था। ये पहाड़ भी सर कर लिया। पानी पीकर तबीयत को करार आया। तोबा, मैंने कानों को हाथ लगाए। कैसे बुरे भयानक बेअक्ली के ख्वाब थे, खुदा मुझे माफ करे। बुखार उतर गया तो अब भूख लग रही थी। रात का वक्त था। मेरे जेलर तो सवेरे ही आएंगे, जब भी कुछ खाने को देंगे। हाँ, वो लड़की रूपाली के पास अगर कुछ खाने को हुआ तो शायद। मैंने एक बार फिर दीवार थपथपाई। सन्नाटा था। मैंने इसे पुकारा। पहले गद्दे पर से आवाज लगाई, फिर हिम्मत करके रोशनदान के नीचे जा खड़ा हुआ। लड़की का नाम लेकर आवाज दी। हल्के से जवाब आया, हाँ रूपाली, कुछ खाने को होगा तेरे पास? इसने जवाब नहीं दिया। पूछा, आ गए? मैं कहाँ गया था? बुखार में था। इस वक्त बुखार है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं। इसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, तुम 5 दिन पीछे वापस आए हो। 5 दिन? मैं परेशान हो गया। हाँ, वो तुम्हें सोमवार को ले गए थे सवेरे। आज शनिवार है, मतलब अभी तो रात है। दिन में शनिवार था, शनिचर हो गए ना। 5 दिन से ऊपर। मेरा सर चकरा गया। गजब खुदा का। रूपाली, मुझे कुछ याद नहीं। सोचो, कुछ खबर है कहाँ ले गए थे? मगर तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कहाँ ले गए थे। इसने बात बड़े दुख से कही थी। मैंने पूछा, तुम्हें मालूम है क्या कह रहे थे वो लोग? नहीं, वो बोली, बस इतना मालूम है मोटर में ले गए थे, चारपाई जैसी कोई सुकड़ी चीज पे डाल के। अच्छा, खबर है कब लाए? कहने लगे, अभी रात में लाए होंगे। मैंने मोटर की आवाज़ सुनी थी। कैसे हो तुम? मैं, हाँ तुम अब कैसे हो? वैसे तो ठीक हूँ, पर रूपाली समझ में नहीं आता, अजीब बातें हुई हैं। कैसी? मैं समझता था ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब नहीं थे वो, मतलब वो बातें असल में हुई होंगी। उन्होंने नशे की दवाओं इंजेक्शन पर रखा होगा मुझे। हाँ और क्या, पर कैसी बातें हुई? इतना याद है बहुत से कागजों पर दस्तखत कराए थे। दस्तखत क्यों? क्या मालूम, खबर नहीं किस चक्कर में है बदमाश। हाँ तुम बोलते थे भूख लगी है। हाँ बहुत भूखा रूपा। मैं तुम्हें रूपा कहूँ?
روپا بھی اچھا ہے، ٹھہرو کچھ لاتی ہوں۔ ادھر تالا ہی ڈالا انہوں نے۔ تم نہیں تھے اس لیے۔ اچھا رسوئی جاتی ہوں، کوئی سادھن کوئی طریقہ کرتی ہوں۔ اور پھر خاموشی، وہ چلی گئی ہوگی۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔